Hello everyone, this is Sapna Madan and in today's class we will discuss about the next fifth type of the reactions which are the redox reactions, and thereby we will also be covering the last topic of this chapter, which is corrosion. In the upcoming videos, I will also try to bring in some previous year questions for you to practice so that you get a view of what type of questions are asked in the book. Now let's discuss about the fifth types of the reactions, which are the redox reaction. Now the word redox itself has came from the two words. The red word is actually the reduction and the ox word is for the oxidation. So these are the types of the reactions in which one of the reactant gets oxidized, the other one gets reduced. So before getting into what actually a redox reaction is, we need to know certain terms. First of all, we need to know what actually is oxidation and reduction. तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑक्सीडेशन क्या होता है, as the word in itself explains कि oxidation means something is related with the oxygen. So oxidation का मतलब is gain of oxygen. So जो भी चीजें oxidation में देखिए gain होंगी, वो सारी की सारी चीजें जो है reduction में उसका हम opposite करेंगे. So once you remember what actually is oxidation, you need not to learn what actually will be reduction. So oxidation is gain of oxygen and reduction will be then loss of oxygen. So if reduction on the other hand is the gain of hydrogen, reduction is gain of the hydrogen, so oxidation uska opposite hoga, that is the loss of the hydrogen. Similarly, there is gain of one more thing in the reduction, which is the electrons. So in reduction, if the electrons are gained, oxidation में क्या होगा, उसका opposite होगा, that is the loss of the electrons. So three features under which we will remember oxidation and reduction is: first is gain or loss of oxygen, second one gain or loss of hydrogen, and the third one is gain or loss of the electrons. नेक्स्ट जो चीज है, इसके बाद दो और टर्म्स है जो कि मेजरली इंपॉर्टेंट है और जिनमें से हमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आर व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, इसको याद रखने का बहुत ही एक इजी तरीका है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड इन द टर्म, ऑफन गेट्स मिक्स्ड अप द ऑक्सीडेशन एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है बेटे, वो अपने आप को रिड्यूस करता है, तो आप इटसेल्फ के साथ उसका अपोजिट लिखेंगे, यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट इज रिडक्शन. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, राइट. सो व्हाइल रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो भी अपना क्या करेगा, अपना अपोजिट करेगा. सो इट इटसेल्फ विल गेट्स द ऑक्सीडाइज्ड, राइट. So oxidizing agent itself gets reduced while the reducing agent will itself gets oxidized. तो हम इसका opposite करेंगे, वो खुद oxidizing agent reduce हो जाएगा और सामने वाले जो reactant है उसको oxidize कर देगा, और जो reducing agent है वो खुद जो है वो oxidize हो जाएगा और सामने जो भी reactant होगा उसको reduce कर देगा, right. So let us understand this with a simple example. Now there is one activity which is given in the book. So in the activity what we have actually done, we have taken a metal called as the copper metal और हमने copper powder को एक चाइना डिश के अंदर लिया है. अब जो कॉपर पाउडर है उसका जो कलर है, इट्स समथिंग रेडिश ब्राउन कलर. Then we will heat it in the presence of oxygen. What it is going to happen is that अब यहां पे क्या होगा कि ये जो कॉपर है, it will start turning black. Right. So initially the copper metal, the copper powder was brownish to reddish in color. Now as soon as we will put it in a china dish and we will heat it on a Bunsen burner, हम क्या observe करते हैं कि जो ये copper powder है ये somewhat जो है इसके ऊपर black color का deposition हो गया है, right. सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि एक केमिकल चेंज हुआ. अब हमें इतना पता है कि हम कभी भी किसी भी चीज को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसका ऑक्साइड बनता है. तो यही हुआ रिएक्शन में. सो कॉपर जो था, इट रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन
and it formed copper oxide. Right? To balance the equation, we will write here 2 and 2 also. ठीक है? अब ये जो copper oxide था, ये black color का substance था that was actually getting formed when the copper was heated. So this black colored copper oxide was actually which formed after the reaction. Right? So ये जो black color का copper oxide है, we can get back copper from it if we pass the hydrogen gas over it. So अगर इसी copper oxide के ऊपर से हम hydrogen gas को pass कर देते हैं, the reaction which is written here, we get the copper metal and जो hydrogen है वो oxygen को ले लेगा. ठीक है? अब इसी इक्वेशन के अंदर देखिए हम कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करते हैं, कैसे उसको इनकलकेट करते हैं. इफ यू सी कॉपर ऑक्साइड जो है ये रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में चेंज होगा, सो इट्स लूजिंग ऑक्सीजन, राइट? सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट वी कॉल इट एज रिडक्शन. सो बेसिकली कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर फॉर्म करेगा, रिडक्शन इज गोइंग टू हैपन बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन. राइट? ऑन द अदर हैंड जो ये हाइड्रोजन है, इन द रिएक्टेंट हाइड्रोजन जो है जब वो चेंज होगा प्रोडक्ट में, तो इट विल गेन एन ऑक्सीजन. सो सिंस इट विल गेन ऑक्सीजन, सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन. राइट? अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट चीज होती वो होती ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को प्रिडिक्ट करना. अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर what most commonly asked in the exams and it's a frequently asked question. Every time it comes. So कैसे हमें पता चलेगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का? तो सबसे पहले देखिए, आपने प्रोडक्ट साइड को बिल्कुल नहीं देखना. ऑफन अ टाइम स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे थिंक लाइक पीछे से रिवर्स अगर हम करके देखें तो उसका ऑपोजिट होगा. तो आप सबसे पहले रिएक्टेंट्स को ही देखेंगे, प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं देखेंगे. राइट? अगर आप रिएक्टेंट को देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको समझाया था इटसेल्फ विल गेट रिड्यूस. अब कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज होगा, तो दैट मींस कॉपर ऑक्साइड का क्या होने वाला है? रिडक्शन होने वाला है, वो खुद रिड्यूस होगा. तो यहां पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया कॉपर ऑक्साइड. ठीक है? देन उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन, उसको प्रोडक्ट साइड पे क्या है कि ऑक्सीजन मिलेगा. राइट? सो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा. अब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो दैट मीन्स कि जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या हो गया? हाइड्रोजन. तो इसी तरह से लेट्स सी अब सर्टेन एग्जांपल्स आई हैव रिटन फॉर यू पीपल. सो एक इक्वेशन हम बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते, सो विल टू सॉल्व 2 to 3 मोर इक्वेशंस लाइक दिस. सो पहली जो इक्वेशन अगर हम इसको देखें, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे. सो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये जिंक में चेंज हो रहा है. So there is a loss of oxygen, right? If you can see, जो reactant है उसमें ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो दैट मीन्स जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज किया. तो यहां पे हुई हमारी रिडक्शन. राइट? ऑन द अदर हैंड इफ वी सी कार्बन, जो कार्बन है इट चेंज्ड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसने ऑक्सीजन को गेन किया है. तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ठीक है? अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को प्रिडिक्ट करना है, तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस होगा. यानी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जिंक में चेंज होकर रिड्यूस हो रहा है, सो आर जिंक ऑक्साइड इज व्हाट इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट? अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. सो कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होगा, सो कार्बन हियर इज अवर रिड्यूसिंग एजेंट. राइट? सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं. यहां पे मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन है, जिसमें मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, डाइक्लोराइड एंड वाटर एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड. इफ यू सी हियर, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज करके मैंगनीज क्लोराइड बनाएगा. राइट? सो यहां पे हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, सिंस देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सो रिडक्शन इज अकरिंग हियर. राइट? So such a kind of reaction जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है. राइट? सो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट विल चेंज इनटू द वाटर. ठीक है? तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडेशन हो गया. अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को प्रेडिक्ट करना है तो सिर्फ रिएक्टेंट साइड को देखना, आपने प्रोडक्ट साइड को नहीं देखना. तो रिएक्टेंट साइड में देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो मैंगनीज क्लोराइड में चेंज होगा.
राइट। सो यहाँ पे MnO2 MnCl2 में चेंज होगा, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सिंपल सी चीज देखिए हम याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। वो खुद अपने साथ उल्टा करेंगे, जो उनके नेम में गिवन है उससे उल्टा होगा उनके साथ। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है दैट विल ऑब्वियसली बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आयरन का देखते हैं रिएक्शन। सो Fe आयरन जो है वो जब फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, इसमें ऑक्सीजन का गेन है, तो यहां पे हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। एंड वाटर जो है वो चेंज हो रहा है इनटू द हाइड्रोजन गैस, सो इट्स द रिडक्शन। सो देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट्स रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस होगा, यानी यहां पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो वाटर हो गया एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा आयरन। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो है मार्क करके इन द इक्वेशन आप बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज करोजन। सो बेसिकली करोजन क्या होता है, आपने अक्सर शायद कभी नोटिस किया होगा कि जिसको हम कॉमनली रस्टिंग बोल देते हैं, कि कभी हम कोई भी एक आयरन ऑब्जेक्ट जो है कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको जंग लग गया, स्पेशली इन द टाइम ऑफ मॉइस्चर, लाइक मॉनसून के टाइम के ऊपर अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और कोई आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो ओपनली पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी कलर का सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वी से इट की करोजन जो है वो हुई है। अब ये जो जंग लग रहा है, ठीक है, करोजन जो है ये कोई एक मेटल के साथ स्पेसिफिकली नहीं है, ये काफी मेटल्स के साथ होता है that are reactive. अब certain metals react with certain substances in the atmosphere, and we will be discussing 3 such metals जिनके ऊपर हम corrosion बहुत ज्यादा नॉर्मली अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सो सबसे पहले देखिए corrosion क्या है। corrosion is gradual destruction of a metal surface due to a reaction with the number first is moisture, that's water, which is present in the form of vapors in the air, and second thing is oxygen या फिर कोई और chemical in the surroundings. Gradual destruction is basically ये process slow process है, it's a permanent chemical change, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेटल का सरफेस है वो कहीं ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता किन किन वजहों की वजह से है, सबसे पहले देखिए अगर किसी तरह का कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, किसी तरह के वाटर वेपर्स है, तो डेफिनेटली सेकंड जो चीज है विच इज प्री रिक्वेस्ट इज द एयर और द ऑक्सीजन। ठीक है, और या फिर सर्टेन केमिकल्स इफ इट इज सम अदर मेटल, राइट। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं आयरन के अंदर करोशन कैसे होता है। तो आयरन, अगर जो आयरन का मेटल है अगर हम उसको एक्सपोज कर देते हैं इन द मॉइस्ट एयर, ये अपने ऊपर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिसको हम रस्ट बोलते हैं, राइट। सो करोशन इन केस ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग। अब नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कि रस्ट का हमें फॉर्मूला बताना चाहिए, विच इज Fe2O3 फेरस ऑक्साइड डॉट XH2O। अब यहां पे डॉट XH2O का मतलब क्या है, देखिए डॉट करके XH2, X means X could be any number, it could be 1 2 3, so it's a variable term, right? So XH2O, अब यहां पे डॉट लगा के वाटर का क्या मीनिंग है, this water molecules are present in the form of water is crystallization, so that means कि water जो है ये जो प्रेजेंट है ये हमारे आयरन ऑक्साइड के ऊपर उसके साथ प्रेजेंट है, बट इट हैजंट फॉर्म्ड अ केमिकल कंपाउंड विद इट। अब उसके साथ है बट उसने केमिकली उसके साथ रिएक्ट करके कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म की, इट कुड बी अराउंड द मॉलिक्यूल ऑफ द आयरन ऑक्साइड। ठीक है, सो ये है हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपने जो चीज है ये याद रखनी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है रिएक्शंस को याद रखना, बिकॉज एज इट इज रिएक्शंस जो है पेपर में लिखने को आपको आ सकती है। सो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज एमसीक्यू में थोड़ा सा ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट और लाइक दैट।
ठीक है. सो यहाँ पे हमारा रिएक्शन है आयरन व्हेन इट रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन एक्स molecules of water, so we'll get Fe2O3 dot XH2O solid which is a rust. ठीक है. देन उसके बाद सेकंड मेटल पे चलते हैं विच इज सिल्वर. सो बेसिकली जो सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा सल्फर लाइक कंपाउंड्स के साथ इन द एयर. सो अगर हम सिल्वर को भी एक्सपोज्ड ऑफ रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो सिल्वर मेटल के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर जैसे काला काला है ना कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है, ब्लैक कलर का कुछ डेपोजिशन होता है, तो कहते हैं हम सिल्वर पुराना हो गया है, चांदी है ना. सो बेसिकली ये सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करता है मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से, और ब्लैक कलर की जो ये सब्सटेंस फॉर्म होती है ये होती है सिल्वर सल्फाइड. सो बेसिकली जो सिल्वर है वो रिएक्ट करेगा विथ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट विल फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. सो ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड है. इट्स अ ब्लैक कलर कंपाउंड, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर की. अब इसकी एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि फेमस एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ कि जो कॉपर है अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, राइट, उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो एक्चुअली में ग्रीन कलर का नहीं था. इट वॉज अ स्टैच्यू विच वॉज मेड फ्रॉम द कॉपर मेटल. So it reacted slowly with the moist carbon dioxide and oxygen present in the air to form basic copper carbonate, which you can say is the green colored deposition of a compound which is actually corrosion in case of the copper. So basically जो copper है वो react करेगा water के साथ in the presence of carbon dioxide gas, oxygen gas, and you will get CuCO3 dot CuOH twice. Basic copper carbonate. This basic term has come from the copper hydroxide. आपको पता है जो OH ग्रुप्स है वो बेसिस के साथ जोड़ते हैं, जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करते हैं द वाटर. सो द बेसिक टर्म हैज केम फ्रॉम हियर एंड कॉपर कार्बोनेट यू नो. सो दिस इज अ ग्रीन कलर्ड compound and you can say it's the corrosion in case of the copper, right. So these three metals and their observations of color changes and the reactions you need to remember for the corrosion. Next देखिए लास्ट में हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स है कि corrosion से हम कैसे किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं ताकि उसको corrosion ना लगे. So there are basically main 5 methods by which we can prevent the corrosion in case of a metal. So for which मैंने एक छोटा सा आपको ट्रिक दिया है. Just remember this word called as POGGA. ठीक है. So ये POGGA word का क्या मीनिंग है? P से है पेंटिंग. इफ अ मेटल सरफेस जो है इसके ऊपर आप पेंट की कोटिंग कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि मेटल जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता एयर से, मॉइस्चर से, राइट. सो इन दैट केस हम उसकी जो है प्रिवेंट कर सकते हैं corrosion. Then comes the oiling. If you spread a layer of the oil on the surface of the metal, what will happen? The metal will not come in a direct contact with the air or the moisture. So in that case, you can also prevent a certain metal from the corrosion. Then greasing also. If you apply the grease on the surface of a metal, it will not come in direct contact with the air or the moisture. Then comes the galvanization. So galvanization is an important process in which we deposit a layer of the zinc coating on the surface of iron. So basically zinc is being less reactive metal as compared to iron. When we get deposited a layer of zinc on the surface of the iron, what happens is that since the zinc is a less reactive metal, so it will not get corroded easily, so thereby protecting the inner iron layers also from corrosion. So last में है हमारा anodizing process, and A से anodizing याद रखिएगा. Anodizing is majorly used in case of aluminium metal. So aluminium basically reacts with the oxygen and it forms a compound aluminium oxide Al2O3. And this aluminium oxide जो है
ये काफी ज्यादा एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, सिंस वंस द एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द एल्यूमिनियम, इट विल नॉट लेट द इनर लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम to get easily oxidized or corroded. So in that way ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर ये जो ऑक्साइड की लेयर है, यानी ये जो करोशन है, ये हमारे बेनिफिट में काम करती है, क्योंकि एक बार जो टॉप लेयर ऑफ एल्यूमिनियम की जो है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर बना लेती है, तो नीचे वाली जो एल्यूमिनियम जो है वो कहीं ना कहीं बच जाती है उस पूरे ऑक्सीडेशन करोशन प्रोसेस से, right? If you will observe in all of the corrosion reactions, we have somewhat done the oxidation. So corrosion can otherwise also be called as an oxidation, right? So it's an oxidation reaction also. So aluminium जो है इसके केस में जो ये corrosion है, जो oxidation है, वो हम खुद ही करवाते हैं using a process called as anodizing, जिसमें हम एक uniform oxide के layer form करवाते हैं on the aluminium metal. Otherwise could not happen in that uniform way because aluminium is does not form so much uniform oxide layers on its surface. So इसकी वजह से क्या है कि एल्यूमिनियम के केस में जो करोजन है वो हमारे बेनिफिट में काम करती है, राइट? सो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.